understand it's really good. ठीक है, ये demand curve is intact. Let's bring the cost curve over here and then find out the output at which the profit will be maximized. ठीक है, तो उसके लिए एक बार रेवेन्यू AC MC कर्व्स तो ऐसा ही होता है, AC कर्व MC कर्व, उसमें कुछ जानने का नहीं, बट रेवेन्यू वाला पार्ट थोड़ा सा और जाने तो बढ़िया रहेगा. तो रेवेन्यू वाले पार्ट में अपने को अभी ये समझ में आया कि मोनोपोली फर्म would like to charge the highest possible profit. हम क्या क्या बोल रहे हैं, monopoly market में industry and firm is the same. This is the first thing I said, is the same. दूसरा हम ये बोला monopoly market में no competition, तो no competition, therefore firm will like to charge what? Highest possible price. Highest possible price. Firm will like to charge highest possible price. Firm will like to charge the highest possible price. और highest possible price क्या होता है? Highest possible price is what? Demand price. What price? Demand price. Therefore, D equal to P equal to AR. Monopoly में D equal to P equal to AR. Demand curve itself is the price curve, which is the AR curve. Demand curve itself is the price curve, which is the AR curve. So monopoly में D equal to P equal to AR. Okay. So if I now draw that curve, quantity, revenue. एक बार cost नहीं बना रहे, केवल revenue संभाल रहे. This is the demand curve. This shows how much consumers are wanting to pay, और जितना consumer देना चाह रहा पूरा उससे ले लेंगे. So D equal to P equal to AR. First class economics, we know that on a demand curve, linear demand curve, elasticity of demand is lower segment by upper segment. At the midpoint elasticity क्या होता है? 1. At the topmost point elasticity क्या होता है? Perfectly elastic, infinity. यहाँ पे होता है infinity, यहाँ पे होता है more than 1, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है less than 1, यहाँ पे होता है 0. ओके, तो जब elasticity infinity होता है तब MR and price are same. Perfect competition में जैसे elasticity हमेशा infinity था ना, तो P is equal to AR is equal to MR, you remember? तो जो marginal revenue curve है वो इधर से ही start होगा, MR curve. Okay, and as I was showing you yesterday, कि if we sell 1 unit at 10, 2 units at 9, 3 units at 8, 4 units at 7, तो और MR is what? ठीक है, first तो 10 ले भी दे, तो 10, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 4. ठीक है, because 1 unit you are selling at 10 rupees आ रहा है, 2 units you are selling at 9, तो 2 into 9 कितना आ रहा है? 18. तो 18 minus 10 एक्स्ट्रा क्या आया? 8. 3 units you are selling at 8, तो 8 3 जा 24 आया, तो 24 minus 18 क्या आया? 6. और 4 units you are selling at 7, तो 4 into 7 28, तो एक्स्ट्रा क्या आया? 4. तो जब भी प्राइस गिर रहा है, एवरेज गिर रहा है, तो मार्जिनलाइज बिलो इट ना, मार्जिनलाइज बिलो इट. और इनफैक्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का प्रॉपर्टी होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ओके, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल पास from 2 points. Okay, one is where the price curve starts and the other is जहाँ पे elasticity is equal to what? 1. ED equal to 1. और जब ED equal to 1 है तो MR is equal to what? 0. When elasticity is equal to 1, marginal revenue is equal to what? 0. Elasticity जब infinity है तो marginal revenue is equal to price. Elasticity जब greater than 1 है तो MR is what? Positive. और elasticity जब 1 है MR is equal to 0. Elasticity अगर less than 1 है तो MR is what? Negative. Think about it, एक बार इसका intuition लेते हैं. Elasticity less than 1 है. Elasticity क्या है? Less than 1. यहाँ पे अगर elasticity less than 1 है, इसका मतलब अगर ज़्यादा बेचेगा तो revenue क्या होगा? गिरेगा. ज़्यादा बेचेगा तो रेवेन्यू गिरेगा. क्यों गिरेगा? बिकॉज ज़्यादा बेचने के लिए आपको दाम क्या करना पड़ेगा? दाम कम करना पड़ेगा. और इलास्टिसिटी सिंस लेस देन 1 है,
तो आप दाम अगर कम करोगे तो डिमांड जोर से बढ़ेगा कि जरा सा बढ़ेगा? जरा सा। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो यू रिड्यूस द प्राइस बाय 10%, डिमांड विल गो अप बाय 4%, तो प्राइस गोज डाउन बाय 10 एंड डिमांड गोज अप बाय 4%, तो ऑन द होल रेवेन्यू विल व्हाट? फॉल। ठीक है ना? तो जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है, एमआर इज नेगेटिव, इफ यू सेल मोर यू विल लूज, रेवेन्यू कम होगा आपका, ज्यादा बेचने से रेवेन्यू कम होगा, ज्यादा बेचने के चक्कर में दाम को जोर से गिराना पड़ रहा है ना, और डिमांड रिस्पॉन्ड कर रहा नहीं। दैट इज द ओनली नॉन ग्राफिकल इंट्यूशन बिहाइंड इट कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, मतलब इफ आई रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर आई विल बी हर्ट बिकॉज द कंज्यूमर विल नॉट इंक्रीज द डिमांड जोर से, ही विल इंक्रीज द डिमांड जरा सा, और प्राइस गिर गया तो रेवेन्यू क्या होगा? गिरेगा। जबकि जब इस पोर्शन में है, इस पोर्शन में तो इलास्टिसिटी क्या है? मोर देन 1। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम दाम को कम करते हैं, इफ आई रिड्यूस द प्राइस, डिमांड जोर से बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? रेवेन्यू इज राइजिंग, तो एमआर इज व्हाट? पॉजिटिव। एमआर इज पॉजिटिव। तो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू का सिचुएशन? टोटल रेवेन्यू जो है ना, वो इधर से इधर तक राइज कर रहा है और इधर क्या कर रहा है? फॉल। दिस इज द टीआर कर्व एंड थिंक अबाउट इट, बिकॉज एमआर पॉजिटिव है, एमआर पॉजिटिव दिख रहा है, एमआर इज पॉजिटिव, तो एमआर पॉजिटिव है तो टीआर इज व्हाट? राइजिंग। एमआर इज 0 तो टीआर इज व्हाट? मैक्सिमम। एमआर इज नेगेटिव so टीआर इज व्हाट? फॉलिंग। तो दिस इज द रेवेन्यू कंडीशन ऑफ अ मोनोपोली फर्म, रेवेन्यू कंडीशन। इसको पैरेलली परफेक्ट कंपटीशन से लिंक करो। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का हाल क्या था? P equal to AR equal to MR and TR was what? Upward sloping. ओके, और यहाँ पे क्या है? डिमांड कर्व इज द प्राइस कर्व, MR कर्व उसके बीच में लाई कर रहा है, एंड टोटल रेवेन्यू कर्व इज वेल शेप्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछता है ट्रू और फॉल्स, a monopoly firm will always operate on the elastic region of the demand curve. A monopoly firm will always operate on the elastic region of the demand curve. Elastic region ये वाला region हुआ ना? Okay, elastic region is this region. This is infinity. ये elastic region है. तो elastic region में MR क्या है? Positive. तो firm तो वहीं पे operate करेगा. Elastic region में firm will not operate in the inelastic region जहाँ पे MR is what? Negative. तो monopoly firm will always operate in the elastic region of the demand curve. ठीक है? Elastic region में firm operate करेगा. ओके, जहाँ पे MR is what? Positive. तो ये फर्म का रेवेन्यू कंडीशंस है। ठीक है? और वो चीज़ तो पता रहना ही चाहिए, वो जो साइड में लिखा हुआ है कि 1 यूनिट का 10 रुपये बेचते हैं, 2 यूनिट 9 पे बेचते हैं तो MR तो और कम आता है, 3 यूनिट 8 पे बेचते हैं तो MR 8 थोड़ी आता है, MR is what? 6. Because in selling more you have to reduce the price not only of the next unit but of all the previous units also. ठीक है? So your MR is lower than price. इसमें एक बार हम इक्वेशन से बोल रहे हैं, इक्वेशन सुनना। This is 60. How much? 60. अगर मैं इसको 60 लिख रहा हूँ और जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन, उसका इक्वेशन बोल रहे हैं, सुनो। उसका इक्वेशन है प्राइस इक्वल टू 60 माइनस 2Q। प्राइस इक्वल टू व्हाट? 60 माइनस 2Q। मतलब क्वांटिटी जब 0 है तो प्राइस इक्वल टू व्हाट? 60। एंड एवरी टाइम यू वांट टू सेल 1 यूनिट मोर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस बाय 2। प्राइस इक्वल टू 60 minus 2Q. And when quantity is 0, price is what? 60. And if I want to sell 1 unit, I have to make the price 58. If I have to sell 2 units, I have to make the price 56 and so on. MR कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 60. तो MR का, और MR स्टीपर है कि फ्लैटर है? स्टीपर है। MR का इक्वेशन है 60 minus 4Q. प्राइस है 60 minus 2Q, तो MR का इक्वेशन है 60 minus 4Q. That's because, although याद करना जरूरी है, rather derivation. That's because if price is 60 minus 2Q, then can I write total revenue is 60Q minus 2Q square? Total revenue तो P into Q होता है ना, और इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे MR, तो that is equal to 60 minus what? 4Q. So look at these two curves. If price equal to 60 minus 2Q, MR is equal to 60 minus 4Q. The numbers are not important, the conclusion is important. MR curve lies exactly midway between the price curve and the y-axis. MR curve has double the slope. What slope? Double the slope. It's doubly steeper as compared to the AR curve. तो property से मतलब, of course 60-20 से 2 से कोई मतलब नहीं। तो जो MR curve है, you got to understand, MR curve वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से प्राइस स्टार्ट हो रहा है, और उसका स्लोप जो है वो डबल है, डबल। ओके, डबली स्टीप। वो 2 के रेट से गिरा तो क्या 4 के रेट से। ठीक है? इसका स्टीपनेस डबल है उससे। ठीक है? That's the MR curve. It lies midway between the price curve and the y-axis.
Okay, MR lies between the price curve and the y-axis. अब given all this, क्या चीज मिस है ग्राफ में? कॉस्ट फंक्शंस, बिकॉज ये तो रेवेन्यू हुआ, अब कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, मोनोपोली फर्म का भी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या चीज मैक्सिमाइज करना? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए पूरे के पूरे मार्केट चैप्टर में एक ही रूल है, MR equal to MC and MC must be rising. ओके, परफेक्ट कंपटीशन में MR प्राइस था तो आई वाज सेइंग P equal to MC and what? MC must be rising. But monopoly में MR equal to MC and MC must be rising. If I now draw the equilibrium, monopoly का equilibrium, तो monopoly का equilibrium जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं रेवेन्यू कॉमा कॉस्ट, रेवेन्यू कॉमा कॉस्ट। एक ग्राफ तुम्हारा ड्रॉ किया हुआ रहना चाहिए so that you feel convenient. रेवेन्यू कॉमा कॉस्ट। सबसे पहले आई वांट टू ड्रॉ द डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व इज दिस, हो गया? इस पे मार्क कर दो D equal to P equal to AR, D equal to P equal to AR। उसके बाद यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट मार्क कर लो, मिडिल पॉइंट मार्क कर लो, इन दोनों का मिडिल, और मिडिल पॉइंट से MR को ले जाना। दिस इज द MR कर्व। ओके, मिडिल पॉइंट मार्क करके MR को उससे ले गए, MR कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। कोई भी मार्केट, एनी मार्केट इन द वर्ल्ड, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, एनी मार्केट, शॉर्ट रन में प्रॉफिट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, प्रॉफिट कैन बी इक्वल टू जीरो, प्रॉफिट कैन बी लेस देन जीरो, बट इफ इट इज लेस देन जीरो, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ABC, अदरवाइज द फर्म विल शट डाउन। ये तो लर्न कर लेना चाहिए। कोई भी मार्केट में शॉर्ट रन में सुपरनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऑल द थ्री आर पॉसिबल, बट लॉस वाले केस में प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ABC, अदरवाइज द फर्म विल शट डाउन। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम तीन तरह का फर्म्स दिखाना चाहें और हमको अगर दिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज कॉस्ट कर्व बनाने जा रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट कर्व को यहाँ ऊपर से बनाएं कि एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से बनाएं? नीचे से ना, बिकॉज प्रॉफिट लाना है। अगर लॉस दिखा रहा है तो एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर से बनाएगा, और अगर जीरो लाना है तो एवरेज कॉस्ट कर्व को प्राइस से टैंजेंट करेगा। क्या करेगा? टैंजेंट। ओके, तो मेरे को प्रॉफिट दिखाना है, तो प्रॉफिट दिखाना है, इसलिए जो एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर रहा है वो एवरेज कॉस्ट कर्व आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस। दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व, AC कर्व, प्राइस के नीचे रखा है, उसका मिनिमम पॉइंट मार्क किया। ये मिनिमम पॉइंट से कौन सा कर्व ड्रॉ होता है? MC कर्व। सो दिस इज द MC कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, MC कर्व। कैन यू ऑल सी? अगर परफेक्ट कंपटीशन होता, कौन सा कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का अगर ये डायग्राम है, तो इन दैट केस इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है? P equal to MC, and please try to see P equal to MC कौन से पॉइंट पे? P equal to MC is over here ना। इतना माल बेचता परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, इतना माल बेचता, ठीक है ना, शॉर्ट रन चल रही है। बट मोनोपोली को क्या करना है? P equal to MC की MR equal to MC, MR equal to MC, MR equal to MC इधर हो रहा है, देख रहे हैं? यानी परफेक्ट कंपटीशन होता तो इधर होता, तो मोनोपोली हो रहा है तो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी इधर में कमती बेचता है ना, कमती। तो जब हमने सेकंड चैप्टर किए थे ना, वो मार्केट्स इन एक्शन, फेयरनेस एंड एफिशिएंसी, वहां बोला था कि मोनोपोली वाला फर्म जो ज्यादा दाम चार्ज करता है पर बेचता परफेक्ट कंपटीशन से कमती है। परफेक्ट कंपटीशन तो वो हो गया MB equal to MC, एलोकेटिव एफिशिएंसी, ओके, नो डेड वेट लॉस। और मोनोपोली वाला कमती क्वांटिटी बेचता तो देयर इज अ डेड वेट लॉस ना, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो क्या जो भी मोनोपोली चल रहा है, तो लेट मी मार्क द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया MR equal to MC, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया MR equal to MC, E स्टार इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो E स्टार है, इस पे क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट? Q स्टार, और प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पे P स्टार, प्राइस इज P स्टार। ओके, और जबकि अगर हम बना रहा नहीं है, बट अगर हम इसको टालेंगे तो इसको ये MC आएगा, तो मोनोपोली फर्म इज चार्जिंग अ प्राइस ग्रेटर देन MC ना। परफेक्ट कंपटीशन वाज चार्जिंग अ प्राइस इक्वल टू MC, और मोनोपोली फर्म तो प्राइस चार्ज किया ग्रेटर देन MC। ठीक है, तो AC का है? AC, ये रहा ब्लू लाइट, दिस इज AC, C स्टार।
तो प्राइस इज मोर देन कॉस्ट पर यूनिट. सो ये जो डब्बा बना, दिस इज व्हाट प्रॉफिट. दिस इज द प्रॉफिट. ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो हो रहा है फर्म को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो फर्म को हो रहा है. ओके, दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेड बाय द फर्म. अगर एवरेज कॉस्ट कर्व को उठा के यहाँ पे टेंजेंट कर दिया, यहाँ टेंजेंट, तो प्रॉफिट आएगा जीरो. और अगर एवरेज कॉस्ट कर्व को ऊपर बना दें तो क्या आएगा? लॉस. ठीक है ना? तो वो तो एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर नीचे से हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या नहीं. ठीक है? तो जो मोनोपोली फर्म है उसको तो बहुत सारा टैक्टिक्स लगाना पड़ेगा. इट हैज टू समहाउ सी दैट द डिमांड कर्व जो है वो चेंज हो पाए, ज़्यादा प्रॉफिट हो. कॉस्ट कर्व नीचे जा पाए तो ज़्यादा प्रॉफिट हो. तो वो तो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग, प्राइसिंग, चेंज सब चीज़ कर सकते हैं ना. प्राइस कम कर दी, ज़्यादा बेचने के लिए क्वांटिटी कम कर दी, प्राइस ज़्यादा चार्ज किए. ही कैन डू ऑल दैट. ही कैन चेंज द कॉस्ट ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग दैट. बट नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट कम ही करते हैं, बिकॉज मोनोपोली है ना. जरूरत क्या है? पीपल मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज द ओनली प्लेस वेयर दे कैन गेट द प्रोडक्ट. तो लॉट ऑफ फोकस ऑन एडवर्टाइजमेंट इज नॉट देयर. ओके, so that is short run monopoly equilibrium. ऐसा 3 डायग्राम बन सकता है. अपने को डायग्राम से मतलब नहीं है. If you are understanding कि AC को चेंज करके we can make the 3 diagrams. Pi greater than 0, pi equal to 0, pi less than 0. Okay? Under monopoly. Monopoly में ये लोग टिक मार्क्स देता है कि monopoly industry has no supply curve. Has no supply curve. AS curve थोड़ी है. AD curve है ना. There is no supply curve in the case of monopoly market. No supply curve. ठीक है? It wants to charge the highest possible price. The demand curve is the price curve is the AR curve. ठीक है? No supply curve.